کیونکہ کال مجھے اصل میں میرے ساتھ جی کالر کافی دیر سے منیبہ اب آپ جب بات کریں گے ہم سمجھیں گے. اب آپ نے پہلے پوچھنا بریک تو نہیں ہے. منیبہ میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم منیبہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک. منیبہ آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر. ہاں جی منیبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ کزن میرج ہوئی آپ کی؟ گھر میں کس کس کی کزن میرج ہے؟ نہیں ابھی ہونی ہے آپ کی. تب مجھے پتا نہیں تھا. میری منگنی ہوئی ہے میری بڑی پھپھو کے ہاں. اچھا بڑی پھپھو کے ہاں. ٹھیک ہے جی. اور میں نے اس وقت مجھے پتا نہیں تھا. اب مجھے پتا ہے تو مجھے پوچھنا تھا کون سے ٹیسٹ میں کروا سکتی ہوں شادی سے پہلے. آئے میری جان. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے بڑی پھپھو کے ہاں اور کس کس کا رشتہ ہوا ہے؟ اور کسی کا بھی نہیں, صرف ابھی میرا ہی ہوا ہے. اچھا خاندان میں اور پھپھو ماموں چاچا کسی کے ہاں ہوا ہے کہ کسی گھر میں؟ چھوٹے ہیں. اچھا سب بھی چھوٹے ہیں تو سب کبھی قربانی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے میری جان آپ شو دیکھتے رہو. جی بڑی پھپھو کے ان کا رشتہ ہو گیا. ان کو اچھا اپنے لیے بیچاری پوچھ رہی ہے. اب لڑکی کا بھی آپ نے کرانا ہے. ٹھیک ہے نا منیبہ؟ صحیح وقت پہ صحیح سوال ہے. ہاں اچھا تو دیکھیں پہلے تو یہ کہ کچھ ٹیسٹ شادی سے پہلے ہو سکتے ہیں. جیسے ان کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ دے بوتھ کین گو ٹو دی جینیٹک کاؤنسلر. میں نے پہلے بھی کہا تھا سمپل ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جینیٹک ٹیسٹنگ ہمیشہ بلڈ سے ہی ہوتی ہے. کیروٹائپنگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی جب پریگننسی ہو جائے تو اس کے دوران بھی شروع میں بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو 99% ٹائم رول آؤٹ کر دیتے ہیں ڈاؤن سنڈروم یا اس طرح کی جو بھی کروموزومل انوپلیڈز ہیں. اس کے علاوہ پھر پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں. بہت اچھے اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں جیسے کچھ جگہوں پہ آخان میں بھی ہوتے ہیں, فیٹو میٹرنل یونٹس میں ہوتے ہیں جس میں این ٹی اسکین میجر کرتے ہیں تاکہ بچے کی ابنارمیلٹی کا رسک بتا دیتے ہیں. اس میں اگر کچھ آ جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انویزو ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. بیبی کا پانی لے کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. بیبی کا پلیسنٹا کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے ڈیفینیٹو ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے جس پہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے. یعنی شادی سے پہلے ٹیسٹ جو ہوئے تھے اس میں آپ کو رسک بتا دیا جاتا ہے کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز, آپ کا رسک کیا ہے. اس رسک کی کنفرمیشن ڈیورنگ پریگننسی ہو جائے گی اور ڈیفینیٹو ٹیسٹنگ جس میں پانی یا گوشت کا ٹکڑا لینے کے بعد 100% کنفرم ہو جائے گا کہ اس بچے میں ہے یا نہیں. یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو لوگ اپنا خون نہیں دے رہے ہوتے نکال رہے ٹیسٹ کے لیے. آپ نے گوشت کے ٹکڑے کی بات کری. ڈاکٹر صاحبہ ذرا کلیئر کریں گوشت کا ٹکڑا کس چیز کے لیے چاہیے ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب سی وی ایس کہتے ہیں یا ایمنیوسنٹیسس دونوں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. اسے پلیسنٹا سے ایک چھوٹا سا معمولی سا اتنا مائنیوٹ سا پیس لیتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے بیبی کا کہ اس بیبی کے اندر کروموزومل ابنارمیلٹی کتنی ہے, جینیٹک ڈسلوکیشنز یا جینیٹک میوٹیشنز کتنی ہیں, اس میں چانسز کیا ہیں. اور یہ ایکچولی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ بھی نارمل آ جائے تو 5ویں مہینے کا جس کو بڑا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں, دیٹ الٹرا ساؤنڈ آلسو رولز آؤٹ اسٹرکچرل ایبنارمیلٹیز کی دل ٹھیک ہے, کڈنیز ٹھیک ہیں, ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں. سو دیر آر مینی ویز ٹو فائنڈ آؤٹ. اس سے بچ کے نکلنا کافی کم ہو گیا ہے کہ اگر لوگ کروائیں تو. بھئی اب میں ذرا صبا سے بھی پوچھوں گی نا کہ اگر یہ بھی کسی کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے چاہے کزن ہو یا نہ ہو, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کزن میرجز کے حوالے سے بات کریں اور پھر جو موروثی بیماریاں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں ہم نے اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی اس حوالے سے بات کی اور جب بھی میں نے اس پہ شوز بھی کیے تو ایک بات ضرور کہی ہے کہ جی اپنا بلڈ ٹیسٹ خدا کے لیے ضرور کرائیں. آپ کو نہیں پتا کہ میں تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتی ہوں, اور میری اگر شادی کسی ایسے بندے سے ہو جو کہ تھیلیسیمیا مائنر ہو تو جو ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہے, مطلب اینڈ پروڈکٹ بھی نہیں کہوں گی لیکن ہاں جو ہمارا پروڈکٹ ہے مل کے, وہ بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات کہ تھیلیسیمیا میجر بچے زندگی بھر ایک کرب ایک تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی سانسوں کے لیے وہ آپ کے خون کے عطیات کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اسے بہت دفعہ یہ بات بھی کر چکے کہ جی ہمارے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے نکاح نامہ کے اندر نا ایک کلوز ایڈ کر دیں کہ کیا لڑکا اور لڑکی نے اپنے یہ بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں. یقین مانیں اگر صرف ایک یہ کلوز ہی ایڈ ہو جائے نا تو ہماری بہت ساری مشکلات تو وہیں پر حل ہو جائیں. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھیلیسیمیا کیئر سینٹر سے ان کا تعلق ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ میں, معروف چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید آپ کو کہیں گے شو میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے شہروں کی زندگی میں بھی دیکھا ہے اور آپ نے جو رورل ایریاز میں بھی دیکھا ہے کہ کزن میرجز کتنی ہوتی ہیں, اور آپ کیونکہ تھیلیسیمیا کے بہت سارے بچوں سے روز کی بنیاد پہ آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کتنا بڑا رول ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ تھیلیسیمیا کتنی خوفناک چیز ہے. کیونکہ ہم لوگ بات کیا جاتے ہیں لوگوں نے سن لیا, لیکن انلیس اور انٹل آپ نے کسی تھیلیسیمیا کے بچے کو نہیں دیکھا, کسی تھیلیسیمیا کی فیملی کو نہیں دیکھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ
कितनी खौफनाक बीमारी है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पाकिस्तान उन मुल्कों में से कि जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे हैं। हमारे पास लगभग 1 लाख बच्चे हैं। पाकिस्तान थैलेसीमिया फेडरेशन के पास कोई 65,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा गांव देहातों में मज़ीद हैं। तो 1 लाख बच्चों में एक बच्चे को कभी 1 बार ब्लड चाहिए होता है, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको 2 बार ब्लड की बोतल चाहिए होती है। तो हमें कोई 1.5 ब्लड की बोतल भी रख लें तो हर महीने 1.5 लाख ब्लड बॉटल्स चाहिए होती हैं, विच इक्वल्स टू 1.8 मिलियन, यानी 18 लाख ब्लड की बोतल सिर्फ थैलेसीमिया को चाहिए। जबकि इंग्लिस्तान की टोटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट जो है 1.7 मिलियन है पूरे इंग्लिस्तान की, जिसमें प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, सर्जरी सब शामिल है। हमारे तो लोग ब्लड भी नहीं देते, यहाँ पे ये भी अवेयरनेस देने की कोशिश हम कर रहे होते हैं कि ब्लड डोनेट करें, आपके लिए भी अच्छा है। मतलब ब्लड का तो ये मामला है कि हम जाते हैं 1600 की यूनिवर्सिटी में, बाज़ औक़ात 16 ब्लड मिलते हैं, 20 मिलते हैं। तो वो ब्लड डोनेशन मोटिवेशन आप जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जब बैठ के मीडिया पे बोलेंगे तो आम बच्चों तक वो मैसेज पहुंचेगा। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हम तो फ़र्द के तबीब हैं, आप लोग माशरे के तबीब हैं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं आप लोग सोसाइटी में सुधार पैदा करते हैं, पूरी सोसाइटी को तब्दील कर देते हैं। 1923 में इंग्लैंड जो था 1943 में वो नहीं था, 1920s में इंग्लैंड ऐसा था जैसे हम इस वक्त, 1940s में वो डेवलपमेंट भी था। यही हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका आपने देखा। तो इंशाल्लाह ये जो एफ़र्ट्स आप लोग कर रहे हैं, देखिए कज़न मैरिज से ना सिर्फ थैलेसीमिया तो एक ही तकलीफ दे अमल, और हमारे पास हर साल 5,000 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनके फाइनेंशियल, जिसके एक घर में 2-3 बच्चे हो गए वो बाप क्या कमाएगा, क्या रहेगा। डॉक्टर साहब और साथ में उनको मना भी तो कर रहे होते हैं कि आप अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन बच्चों में भी, जैसे अब आप लोगों के थैलेसीमिया सेंटर्स में मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो बताते जी हमारे एक बच्चे की डेथ हो गई है और अभी मजीद हमारे और बच्चे भी हैं। तो मतलब उनको ये भी समझाने की ज़रूरत है कि आप मजीद बच्चे मत पैदा करें। एग्जैक्टली और ये देखिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि नर्स वो एक टोन में कहती रहेगी, डॉक्टर कहता रहेगा। जब आप लोगों से ये बात सुनते हैं, ये इतने प्राइम टाइम में बैठ के आप लोग इस मौजू पे बात करते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि हम एक जागी हुई एक ज़िंदा नेशन है और हमारे मीडिया पे बैठे हुए लोग जो है ना वो एहसास रखते हैं, वो नफ्स पे हाथ रखते हैं माशरे की, और माशरे के मसाइल को अपने दिल पे लेते हैं। यहाँ पे मतलब एक ही टोन नहीं चल रही होती कि ऑलवेज समथिंग मॉडर्न एंड, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। अब अगर कज़न मैरिज में थैलेसीमिया से हट के मैं अपने घर की बात करता हूँ, उमैर सना फाउंडेशन, मेरे भाई के बच्चे थे उमैर और सना। उमैर को एक ब्लड डिजीज़ थी, वाइट सेल्स अटैच नहीं होते थे, डॉक्टर काशिफ अंसारी के बच्चे थे, और जो अभी ड्रामा भी बना रहे हैं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो उमैर का इंतकाल हो गया, वाइट सेल उसके काम नहीं करते थे। फिर हमने सना की बारी में CVS माँ के पेट में टिश्यू था, अमेरिका में रहते थे, वो टेस्ट करा लिया, उमैर वाली बीमारी सना को नहीं थी। शुक्र अदा किया, सेलिब्रेट किया, हम लोग कहीं पे थे। फिर जब सना की पैदाइश हुई तो साल भर बाद पता चला उसको लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है, बिकॉज इट वाज अ कज़न मैरिज। अब कज़न मैरिज है, फिर अब जो तीसरे बच्चे हैं, पहले 10 साल तक कोई भी सेहतमंद बच्चा नहीं था, फिर अल्लाह ने 2 बच्चे दिए, अब तीसरा बच्चा, उसके अपने मसाइल हैं। सो कज़न मैरिज में एक फैमिली में वी आर लिविंग इन मतलब सो मैनी डिजीजेस। तो आप सिर्फ थैलेसीमिया तो एक बहुत बड़ा मसला है कि जो जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, मगर जो दीगर मसाइल हम जेनेटिकली, देखिए मेमन में शादी कर रहे हैं, एवरी कम्युनिटी इज मैरिंग विद इन देमसेल्व्स। एक अच्छी बात ज़रूर है कि मेमन्स की कोई 80 ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी रिसेंटली चंद साल पहले हम लोगों को बुलाया और उन्होंने ये डिक्लेरेशन दी कि हम शादी नहीं करेंगे थैलेसीमिया के टेस्ट के बगैर। और जैसे आपने फरमाया, चारों ईरान में देखें, ईरान में आप नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसे उस पर काबू पाया है। 1995, 96, 97 में ईरान में 250, 300 और 350 बच्चे जिस सूबे में पैदा हुए थे, 2001, 2 और 3 में 1 या 2 बच्चे पैदा हुए कि उन्होंने शादी से पहले थैलेसीमिया के टेस्ट का कानून इम्प्लीमेंट कर दिया। आपके चारों सूबों में कानून बन चुका है, मतलब असेंबली ने ये कानून पास कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन में फिर क्या मसला है? बस अब होगी, आपने कह दिया, हो जाएगी। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा पता मसला कि हम पोलियो के हवाले से बात करते हैं, हम अगर ये ब्लड टेस्टिंग के हवाले से बात करते हैं, मैं तो मर गई ना, मैं 16 साल की उम्र से, यकीन माने, मैं कॉलेज में ब्लड डोनेट करती थी। मेरी अम्मी इतना डरती थी क्योंकि मुझे बचपन से मैं एनेमिक रही हूँ और मेरा O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बट आई नो कि मेरा खून की ज़रूरत है लोगों को। सो मुझे होता है कि ये मैंने देना ही देना, मेरी अपने लिए अच्छा, मेरे अंदर और फ्रेश खून पैदा होगा। जहाँ पे आप अवेयरनेस की बात करें वहाँ से लोग कटना शुरू कर देते हैं। आप पोलियो की बात करें, कितनी हम पोलियो में बात करते हैं, एग्रेसिव कैंपेन्स करते हैं, इतने नए केसेस सामने आ गए हैं। हम थैलेसीमिया के हवाले से इतनी हम एग्रेसिव कैंपेन के हवाले से बात करते हैं। हमने कोविड के हवाले से मीडिया ने दिन रात अवेयरनेस के शोज किए हैं, पर माशाल्लाह से लोगों ने कहा नहीं जी सॉरी, उन्होंने तो समझा कि जी कोविड तो पता नहीं किसी फूफो की बेटी का नाम हो गया है। लोग तो
मतलब यहाँ मैं करेक्ट करूंगा आपको, देखिए हुमायूं हैं, आप लोग हैं, शाहिद आफरीदी है, आप लोग जब अब्दुल कदीर खान साहब थे, आप लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग मानते भी हैं, जो मानते हैं ना वो आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको तो वो नज़र आ रहे हैं जो डिजीज। आप यकीन जानिए कि चेंजिंग्स आई हैं, ऐसी खती ऊपर मैं तो नहीं करूँगी अपनी पोते की शादी थैलेसीमिया के टेस्ट के बगैर, मेरी पोती के रिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी जब तक कि थैलेसीमिया के टेस्ट नहीं कराएंगे अगले। देयर इज अ चेंज, वक्त लगता है। ये जो प्राइम टाइम पे आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर हम भी ठीक है, हम बहुत चुप करके हमें मुसलसल लगे हुए हैं, अभी देख ले। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा लॉ एंड एनफोर्समेंट वाला फुकदान है। हमारा पाकिस्तान 100% अवेयरनेस के बेस पे नहीं चल सकता, और दुनिया में कोई भी मुल्क सिर्फ अवेयरनेस या बड़ा मोरालिटी पे नहीं चलता, वहाँ पे डंडा होता है। हर यूरोप में भी बड़ा शदीद डंडा है, लेकिन वो नजर नहीं आता कि किस तरीके से सख्ती करते हैं। सिस्टम में सख्ती जरूरी है। यहाँ पे कुछ लोग फाइन कर दें, मैं तो कहती हूँ फाइन करें, कुछ करें, फाइन कर दें। अब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको वहाँ पोलियो का सर्टिफिकेट लेना होता है ना, वहाँ पे कतरे क्यों पिला देते हैं? दुनिया खड़े खड़े सारे आपकी थ्योरी पीछे चली जाती है कि ये साजिश है, ये बैरूनी साजिश है। वो कहता है कतरे पिला, जान छोड़, मेरी इमिग्रेशन लेट हो रही है। यहाँ पे उन लोगों के लिए जो 74 पोलियो की जो केसेस आए हैं, वो ढीठ लोग हो सकते हैं जो समझना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें सख्ती है, पकड़ के लाएं। मैं खुद गया था अभी पोलियो के जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े, तो जब मैंने उनसे घर में जाके नॉक करके बात की, कहते कि नहीं हमने नहीं कराना, हम काफिर हो जाएंगे। अच्छा, कहीं लग रहा था कि जी आपकी नस्ल खत्म करने के लिए आपको नाम बना देंगे। मैंने कहा तुम 25 साल से कतरे पी रहे हो, अपने नस्लें तो देखो, माशाल्लाह पूरी कॉलोनी तुम्हारे नाम से बनी हुई है। 25 साल में तुम्हारी इनफर्टिलिटी नहीं हुई तो अब कैसे हो रही है? तो पल्ले नहीं पड़ता। इन लोगों को पकड़ के अभी हमने सिस्टम किया है कि लिख लिख के ना थाने बुलाते हैं, तो थोड़ा सा इस डर के मारे अब इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज बिल्कुल। रजिस्टर कर करके कहते हैं तुमने तो थाने अभी बुलाते हैं। हमारे किसी बड़े स्टार से मुतालिक भी खबर आई थी कि जी उनके घर बार बार पोलियो की टीम गई थी, एक बड़े स्टार के बाद हम सब मेकर रूम में, मैं नाम उनका नहीं लूंगी, मेकर रूम में आप बात बताएं, नाम हम बताएंगे। हाँ, तो उनके यहाँ भी ऐसी टीम जारी थी, तो वो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर उनको मुतल्लिका थाने से कॉल आ गई। बिल्कुल, ये सिस्टम बना है कि मुतल्लिका थाने से कॉल आके आपको बताना पड़ता है क्यों नहीं कर रहे, और हमें शक होता है तो हम बुला लेते हैं। मेरे ख्याल से डंडे के जोर पे ही ना फिर हम मिक्स्ड है, ये टोटली मिक्स्ड है। लेकिन ये कि चाइना में, कोरिया में, सब में यही हुआ है ना, इसी तरह उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट। ये वो कौम ही नहीं है ना कि जब आप सलाम करके बोले मैं आपको समझाने आऊँ, बोले हम समझ जाएंगे। हाँ, वो कह रहे हम तेरे से ज्यादा समझदार हैं, चल निकल। हाँ, ये बिल्कुल। अब तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग सऊदी अरब में भी हो रही है, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया है। मैं पॉजिटिविटी पे रखूंगा आपको, और आप लोगों के जो असरात हैं वो बताऊंगा। आपने कोविड खत्म किया है, डॉक्टर साहब हम भी पॉजिटिव है, इसलिए हम भी ना ढीठ बन के हम भी कर रहे हैं। आपने कोविड जिस तरह स्मार्टली कंट्रोल किया, दुनिया ने इतने स्मार्टली नहीं किया। आपने हेपेटाइटिस बी कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन कराई है, आपके पास हेपेटाइटिस बी की रेशियो कम है, हेपेटाइटिस सी को कंट्रोल किया, HIV अब तक कंट्रोल करके रखा है। 1 घंटा फ्लाई करके चले जाएं, आपको HIV नजर आएंगे आपके पड़ोसी शहर मुल्क में। अल्लाह का लक्ष्य उसमें आपके मीडिया के, आपके वो जो अशफाक अहमद और बानो कुदसिया के लिखे हुए जो ड्रामे हैं, वो जो अखलाकियात और जो कैरेक्टर और किसी बुरे काम के नतीजे में कुछ बुरा हो जाना है। हाँ, ये एक अलग बात है, बहुत अच्छा सा ड्रामा थैलेसीमिया के हवाले से भी लिखा जाना चाहिए, और उस बाप और उस माँ की तकलीफ दिखाई जानी चाहिए जिससे वो गुजर रहे हैं। और फिर जब उन्होंने प्लानिंग की और इस तरह से, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी में आएंगी। पाकिस्तानी कौम में, कामयाब कौम में भी हाल ही में हमने वो जो हमें कहा करते थे कि पड़ोसी बहुत बहादुर और बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको नाकाम किया है। हम पोलियो को भी नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए 74 इज़ टू मच, आई डू अंडरस्टैंड। मैं खुद पोलियो का कैंपेन कर रहा हूँ, फिर भी मैं कहूँगा जिस मुल्क को 30-40 साल से जंगों में डाला हुआ है, उस मुल्क में अगर यहाँ तक भी हम आ गए हैं कि बड़ी तादाद में कंट्रोल हो गया है, तो इंशाल्लाह थैलेसीमिया के हवाले से आज की गुफ्तगू ऐसी बेशुमार। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे हर साल क्या केसेस कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? थैलेसीमिया के नहीं जी, देखिए बढ़ रहे हैं केसेस, तो बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, मगर शायद ज़्यादा बढ़ते। सच ये है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते अगर ये मेहनत नहीं होती। आप लोगों ने जो जितना कीमती अपना टाइम दे के, आपके तमाम स्टार्स ने, तमाम सेलिब्रिटीज़ ने थैलेसीमिया को एक अपने ऊपर लिया, और उसकी वजह से अगर ये इस वक्त हम 4 लाख पे होते तो 1 लाख पे हैं। बस ये मैं मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 3 लाख तो कंट्रोल किया ना आपने, और इसको कंटिन्यू रखें इस कैंपेन को, इंशाल्लाह देखेंगे। मतलब ऑफ कोर्स मैं बस एंड में मैसेजेस लेना चाहूँगी सबसे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और वैसे ये भी बताइएगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसका अपना कितना राइट है कि अपनी पसंद से शादी कर सके? नहीं, अपनी पसंद से शादी करने का हक तो है, लेकिन ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कजिन्स में हों चाहे आप बाहर हों। मतलब बाहर भी अगर शादी कर रहे हैं तो वो आपकी बात बड़ी अच्छी है कि निकाहनामे में एक क्लॉज होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपनी आने वाली नस्ल के लिए, उनकी बेहतर ज़िंदगियों के लिए, उन्हें माजूरी से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा झेल लें
टेस्ट करवाएं, कजिन्स हो या कजिन ना हो, शादी आपकी लव मैरिज भी हो, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। डॉक्टर वजाहत, मैं ये बोलूँगा कि अव्वल तो इतना कुछ जानने के बाद आप कज़न्स में शादी ना करें, लेकिन अगर बहुत ज़ोर से आपको पड़ी है कि शादी करनी है, कोई जायदाद के मसाइल हैं या कनेक्टिविटी है, तो फिर आप टेस्ट कराएं। वो टेस्ट जो हम बात कर चुके हैं इस शो पे, कोई हर्ज नहीं है अगर आप करा लेंगे और वो सब कुछ सही आ जाएगा। टेस्ट होते हैं कि लोग टेस्टों से भागते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, ये अना पे आ जाती हैं बातें सारी। तो आप ये टेस्ट कराएं, अगर उसमें कोई नेगेटिव आ जाते हैं तो कर लें, अगर कोई पॉजिटिव है तो आपको अल्लाह ताला शुरू में बचा रहा है, ना कि आप शादी का खर्चा, जोड़े का खर्चा, डिजाइनर, इन चीजों में लगे हुए होते हैं। डिजाइनर वाले के पास जाने से पहले एक काम ये करा लें, अगर आपकी मियाँ बीवी में जरा सी अंडरस्टैंडिंग होने वाला, चुप करके जाएं, टेस्ट करा के आ जाएं, किसी को ना बताएं, लेकिन अटेम्प्ट करें, इस शर्म से बाहर निकलें कि लोग क्या कहेंगे या लोगों के बीच में हमारा बुरा माना जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा खुल के काम करें। देखिए, आने वाले काम के लिए प्रोएक्टिवली कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, और उस तकलीफ से बचेंगे जो आपकी औलाद के सामने आने। सही बात है, जिस तकलीफ से आपकी औलाद गुजरेगी, और बच्चों को तो, औलाद को तो तकलीफ में माँ बाप देख नहीं सकते। डॉक्टर साहब, क्विकली मैसेज आपसे दूंगी। मैं ये कहूँगी कि शादी से पहले की टेस्ट बहुत आसानी से अवेलेबल है और अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में आराम से हो जाते हैं, सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं हैं, और सिंपल ब्लड टेस्ट है। शादी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान जो टेस्ट होने हैं उनमें सिंपल अल्ट्रासाउंड है। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ आया तो किसी और टेस्ट पे जाने की ज़रूरत है। अगर अल्ट्रासाउंड ही नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो करवाएं अल्ट्रासाउंड। अभी क्विकली एक जुमले में मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ मैच मेकर अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकें कि जैसे लड़की का NIC देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो अब ये टेस्ट का भी जो इम्प्लीमेंट हम करने की कोशिश करेंगे, होपफुली कि हमें कामयाबी हो। हाँ, डॉक्टर साहब, बस आपके जुमले से मैं एक आपकी इजाज़त से शेयर कर दूं कि सर्द महरी झोंपड़ियों तक आ पहुंची, गांव बिल्कुल शहर जैसा हो गया, तेरी मर्जी की बहू आ तो गई, माँ तेरा बेटा तना रह गया। हाय, चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। इंशाल्लाह जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।